ایک جانب سندھو دریا ہے اور اس کا آخری یہ بچاؤ بند ہے. یہاں سے یا آرئی بنگلوں سے یہاں سے اگر یہ بچا بند ٹوٹتا ہے تو سیدھا لاڑکانہ اور گڑھی خدا بخش اس کو ٹچ کرے گا, اس کو نقصان دے گا. یہ سارا پانی اس طرف ہی جا سکتا ہے. ڈیئرز السلام علیکم. حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند, اور آج میں آیا ہوں سندھو دریا پر, جہاں پر کچھ روز قبل سندھو دریا کے اس بچاؤ بند کو شگاف پڑا تھا. جب پانی چند لاکھ تھا, اب تو اوپر سے بھارت کی جانب سے 12 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی پاکستان کے مختلف دریاؤں, دریائے ستلج, دریائے چناب اور راوی دریا میں پانی چھوڑنے کے بعد جس طرح سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلابی سلسلے نے تباہی مچا کے رکھی ہے, تو اس کے بعد محکمہ اریگیشن سندھ اور سندھ کے حکمران کاغذات میں تو جاگ اٹھے ہیں. آج سندھ حکومت کی جانب سے, محکمہ اریگیشن سندھ کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے. پورے سندھ میں محکمہ اریگیشن کے تمام ملازمین, ورکرز اور آفیشلز کے جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں ان کو سائٹ پر الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ محکمہ اریگیشن کی جانب سے جو الرٹ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق تمام تر چھٹیاں منسوخ کی جا چکی ہیں. کوئی داروغہ ہو, چھوٹا ملازم ہو, یا چیف انجینئر یا سیکرٹری یا منسٹر, تمام تر ذمہ داران اپنے اپنے سائٹوں پر فرائض سر انجام دیں گے. گراؤنڈ پر حقیقت کیا ہے؟ محکمہ اریگیشن سندھ کے ذمہ داران, آفیشلز یا چھوٹے ملازمین گراؤنڈ پر کس پوزیشن میں ہے, یا گراؤنڈ پر کسی کا کوئی اتا پتہ نہیں, اس پر ضرور بات. محکمہ اریگیشن جب اس پوزیشن میں بھی اس قسم کے سچویشن کو کس طرح سے سنجیدگی کے ساتھ لے کر ڈیل کر رہی ہے, تو پھر جو بڑی فلڈ, سپر فلڈ آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ نمٹنے کے لیے کس طرح سے تیار ہوں گے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل سامنے موجود ہے. یہ سچویشن, یہ پوزیشن سکر بیگاری بند کی ہے, اور سندھو دریا کا یہ آخری بند ہے, مین بند ہے. اس سائٹ پر ضلع شکارپور چک ٹاؤن آپ کو نظر آتا ہوگا. ایک جانب سندھو دریا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جانب سندھو دریا ہے اور اس کا آخری یہ بچاؤ بند ہے. اس کے بعد یہ چک شہر ہے جس کی آبادی لاکھوں میں ہے, اور اس کے بعد آگے شکارپور سٹی, لکی غلام شاہ. اسی طرح سے سکر کا ہم ذکر نہیں کریں گے کیونکہ سکر پھر کسی اور سائٹ پر ہے. لیکن اگر آپ اس پوزیشن پر غور کریں گے تو محکمہ اریگیشن سندھ کی سنسیئرٹی, سنجیدگی, ان کا حال دیکھ کر آپ اندازہ لگا گے کہ جب یہ سپر فلڈ جس کے لیے خود محکمہ اریگیشن سندھ کی جانب سے جو آج الرٹ جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پانی پنجاب کے مختلف دریاؤں سے ہوتا ہوا وہ پنجند یعنی کہ انڈس ریور میں سندھو دریا میں 5 یا 6 ستمبر کو داخل ہو جائے گا. اور محکمہ اریگیشن سندھ کے روشنی میں جو محکمہ اریگیشن سندھ بتا رہی ہے ان کے بتائے ہوئے انفارمیشن کے مطابق 7 لاکھ سے اوپر, 7 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی 5 یا 6 ستمبر کو گڈو کو ٹچ کرے گا. لیکن محکمہ اریگیشن سندھ یہ بتانے سے اب بھی قاصر ہے کہ حتمی طور پر کتنا پانی ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ وہ 5 سے 6 ستمبر کے بعد ہی حتمی طور پر بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ گڈو پر پانی کا بہاؤ کتنا, پریشر کتنا پڑے گا. لیکن کم از کم 7 لاکھ سے زائد کیوسک پانی جو امکانی طور پر 5 سے 6 ستمبر کو پہنچ جائے گا. لیکن سپر فلڈ جب تک آئے اب کیا پوزیشن ہے سکر بیراج پر اور گڈو بیراج کے مقام پر, سب سے پہلے یہ سنتے ہیں. یہ سن کر پھر ان کا یہ حال دیکھیں, پھر بات کرتے ہیں آگے کہانی کیا ہے. محکمہ اریگیشن سندھ کے مطابق آج گڈو بیراج پر جو اپ اسٹریم ہے 3,12,000 کیوسک, ڈاؤن اسٹریم ہے 2,80,000. یہ گڈو بیراج ہو گیا. اور محکمہ اریگیشن سندھ کے مطابق
सक्कर बैराज पर जो आज अप स्ट्रीम का पानी है वो 3,50,000 कुछ क्यूसेक, और इसी तरह से सक्कर बैराज के मुकाम पर डाउन स्ट्रीम पर जो पानी मौजूद है वो 3 लाख कुछ क्यूसेक है। यानी कि गुड्डू बैराज पर 3,12,000 अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 2,80,000। इसी तरह से सक्कर पर अप स्ट्रीम 3,50,000 और डाउन स्ट्रीम 3 लाख और कुछ क्यूसेक, और 3 लाख समथिंग क्यूसेक पानी मौजूद होने की सूरत में इनका यानी कि सिंधु दरिया को शगाफ पड़ रहे हैं, और शगाफों को बंद करने का इनका जदीद तरीन जो तरीका है, आप देख सकते हैं झाड़ियां यहां पर लगाई गई है। इमरजेंसी डिक्लेयर है, इमरजेंसी का माहौल है, पूरा पंजाब डूब चुका है, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा डूब चुका है, जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी की सूरत हाल है, भारत में इमरजेंसी की सूरत हाल है, पूरे पंजाब में इमरजेंसी की सूरत हाल है। कई बड़े बड़े शहर पानी के जद में आकर डूब चुके हैं, लाखों लोग दरबदर हैं, और महकमा इरिगेशन भी इस पूरी सिचुएशन से बाखबर भी है। उन्होंने इमरजेंसी भी डिक्लेयर करके रखी है, लेकिन उनके इमरजेंसी और बाखबर होने के बावजूद जब 3 लाख समथिंग क्यूसेक पानी मौजूद है और आखिरी बचाव बंद है, यहां पर 3 लाख पानी की मौजूदगी में शगाफ पड़ रहे हैं, इनको बंद करने के लिए इन्होंने झाड़ियां लगा के रखी है। तो इससे आप इनकी संजीदगी और सुपर फ्लड किस किस्म की तबाही सिंध में बर्पा करेगा उसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। सुनने वालों, देखने वालों, महकमा इरिगेशन सिंध और हुकूमत सिंध की जानिब से इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बावजूद ये कितने बाखबर हैं कि जहां पर पानी को सिंधु दरिया को शगाफ पड़ा है, इनको शगाफ तक का पता नहीं चल रहा कि कहां पर शगाफ पड़ा है। उसके लिए भी सहाफी या मकामी लोग इनको इतला करते हैं, इनको इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद ये कौन सा काम करते हैं और किस तरह से, किस संजीदगी के साथ इस किस्म के पड़ने वाले शिकाफों को बंद करते हैं, वो आपके सामने है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लखी गुलाम शाह के मकामी साथी अब्दुल रज़ाक बरोई साहब से। अस्सलाम वालेकुम बरोई साहब। जनाब क्या हाल है? सुल्तान साहब खैरियत दे, दुआएं अल्लाह। ये कौन सा इलाका है? ये चक है, ये सक्खर बेगारी बचाव बंद है। ये आपको बताता चलूँ कि ये के बंद से लेकर शुरू होता है और 0 पॉइंट सक्खर तक ये जाता है, और ये यहाँ से तकरीबन ये 10-15 किलोमीटर तक एक ही बंद है, इसको लूप बंद नहीं दिया गया है। ये एक ही बंद है जहाँ इसके पानी अभी टच हो रहा है। इसकी निशानदही जो 3 दिन पहले मैंने की थी, यहाँ ये सरफू पत्तन के करीब ये बचा बंद है, चक सिटी के बिल्कुल ही मेन उस पर चौराहे पर है। और इस पर निशानदही के करने के बाद इरिगेशन अमले ने जो काम किया है वो आपने देखा, 3 टालियाँ मिट्टी की डाली है और झाड़ियाँ लगाकर इसको बंद करने की कोशिश की गई है। लेकिन इरिगेशन को ये पता है कि अगर यहाँ से या आरई बंगलों से यहाँ से अगर ये बचा बंद टूटता है तो सीधा लाड़काना और गढ़ी खुदा बख्श जो पीपी का जो पीपल्स पार्टी का मौजूदा सिंध हुकूमत में है, मरकज़ में भाईवार है, इनका जो सियासी काबा है गढ़ी खुदा बख्श, उसको टच करेगा, उसको नुकसान देगा। ये सारा पानी उस तरफ ही जा सकता है। और ये इसका इरिगेशन का काम जो है निशानदही करने के बाद सिर्फ 3 टालियाँ मिट्टी के आ गई हैं, और इस पर एक ट्रैक्टर खड़ा करके वो फोटो सेक्शन किया गया है। और ये मसला अब्दुल रज़ाक बरोई साहब, ये सक्कर बेगारी बंद है और आप बता रहे हैं कि ये आखिरी बंद है, इसके आगे पीछे कोई बचाव बंद नहीं है, जिससे सिंधु दरिया को अमूमन बचाव बंद में 2-2, 3-3 हुआ करती हैं। आखिरी बचाव बंद है, इसमें 3 लाख क्यूसेक पानी की मौजूदगी में इतना बड़ा शगाफ पड़ चुका है। आप नहीं समझते जब 7 लाख, 9 लाख या 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आएगा और इस किस्म की सिचुएशन होगी, आप क्या समझते हैं कुछ बच पाएगा? ये जो है अपना आरई इंस्पेक्शन बंगलों से चक इंस्पेक्शन बंगलों तक ये जो बंद है बेगारी बचा बंद, ये सिंगल है। और अब्दुल रज़ाक बरोई वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने सक्कर बेगारी बंद पर जो आपको सामने नजर आ रहा है, कुछ दिन कबल शगाफ पड़ा, इमरजेंसी डिक्लेयर है, इमरजेंसी नाफिज है, छुट्टियां मनसूख है, पूरा महकमा इरिगेशन अलर्ट पोजीशन में है। लेकिन चक शहर है, लाखों की आबादी है, लाखों की आबादी के मुकाम पर जहां पर इन इरिगेशन के हुक्काम को कोई डर भी नहीं, आराम के साथ विजिट भी कर सकते हैं, देखभाल भी कर सकते हैं। लेकिन शहरी आबादी में भी
वो कितनी नजर रखते हैं और कितना देखभाल करते हैं कि यहाँ के मकामी सहाफी महकमा इरिगेशन को इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन मकामी सहाफी की जानिब से इंफॉर्मेशन इतला देने के बावजूद, कई दिन गुजर जाने के बावजूद इस पड़े हुए शगाफ को किस संजीदगी के साथ बंद किया गया है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि महकमा इरिगेशन से अरबों खरबों लूटने वाले महाकरप्ट सिस्टम सिंध को बचाने, सिंधु दरिया को बचाने, सिंध के करोड़ों लोगों को बचाने के लिए कितना संजीदा है, ये बताना, ये दिखाना काफी है। अगले विलाग में हम आपको ये दिखाएंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बावजूद बचाओ बंद पर इनके हुक्काम, बचाओ बंदों पर महकमा इरिगेशन के हुक्काम, अफसरान या छोटे मुलाजमीन कहां पर कैसे मौजूद है, या कहीं पर भी इनका कोई अता पता नहीं। आप देखकर चौंक जाएंगे। बताना, दिखाना, करप्ट माफिया को झंझोड़ना हमारा काम। कानून की गिरफ्त में ये कब आते हैं, कौम की गिरफ्त में कब आते हैं, ये तो वक्त फैसला करेगा। इसी के साथ अपने मेजबान सुल्तान रिंद को दीजिए इजाजत कि तमाम तर सूरत से आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करेंगे। करप्ट माफिया का पीछा भी होगा, घेराव होगा, इनको बेनकाब और नंगा भी करेंगे। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।